Welcome to VLearn. Today we will cover the topic distributed operating system of subject operating system, and this is session number 10. The topic we will cover today are history of distributed computing, that is workstation network, wide scale distributed computing and the internet, distributed system, key feature and advance of distributed system, advantages of distributed systems over centralized system, advantages of distributed system over isolated PCs, disadvantages of distributed system, design goals of distributed system, in which we will cover concurrencies, scalability, openness, fault tolerance, privacy and authentication, and transparency. Design issues involved in distributed system are naming, communication, software structure, workload allocation, consistency maintenance, Lamport scheme of ordering of events, distributed system structure, in which we will cover application model number 1, that is client server, application model number 2, that is distributed objects, and application model number 3, distributed shared memory. Mutual exclusion in distributed system, in which we will cover mutual exclusion service, token based mutual exclusion, Lamport's Bakery algorithm, Ricard's and Agarwal's mutual exclusion algorithm. And the last topic will be remote procedure calls, in which we will cover how RPC works, remote procedure calling mechanism, implementation of RPC, consideration for usage and limitations. History of distributed computing. Distributed computing begins around 1970 with the emergence of two technologies, that is mini computer and then PCs and computer networks. जो हमारा distributed computing है वो begin हुआ था 1970s में, जब हमारी दो main technology mini computers और computer network emerge हुए थे. The problem with mini computers was that they were slower than mainframes made by IBM, Control Data, Univac, etc. जो मिनी कंप्यूटर्स के साथ में वो जो प्रॉब्लम थी वो थी कि वो मेन फ्रेम से स्लोअर थे. Work on the first computer workstation began in 1970 at Xerox Corporation's Palo Alto Research Center. This computer was also called Alto. Other innovations that come from PARC from 1970 to 1980 include Ethernet, the first local area network, window and icon based computing, workstations and networks. The vision of PARC research was to replace the time sharing mini computer systems with single user workstation. जो विजन था PARC रिसर्च का वो ये था कि हम एक टाइम शेयरिंग मिनी कंप्यूटर सिस्टम को एक सिंगल यूजर वर्कस्टेशन बनाएं. The genesis of this idea is that it made computers into commodity items like TV or a car could be produced efficiently and cheaply. जो जेनेसिस था इस आइडिया का वो ये था कि हम कंप्यूटर्स को एक ऐसी कमोडिटी बना दें जैसे कि हमारी एक टीवी या कार होती है जो कि चीप होती है और एफिशिएंट होती है. वाइड स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड द इंटरनेट. जो दूसरी टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं वो इंटरनेट होते हैं जो कि आजकल हम वाइडली यूज कर रहे हैं. Distributed systems. Multiprocessor systems have more than one processing unit sharing memory / peripheral devices. जो हमारे मल्टीप्रोसेसर सिस्टम होते हैं वो एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं जो कि टाइटली कपल्ड होते हैं, पर इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा होते हैं जो शेयर करते हैं एक मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेस को. मल्टीप्रोसेसर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू. पहले होते हैं टाइटली कपल्ड और दूसरे होते हैं लूजली कपल्ड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. A distributed operating system differs from a network of machines, each supporting a network operating system in only one way. जो हमारा distributed operating system होता है वो network machine से सिर्फ एक तरीके से differ करता है और वो होता है कि the machines supporting a distributed operating system are all running under a single operating system that spans the network. और वो ये होता है कि जो हमारे distributed operating system होते हैं वो एक single operating system पे रन कर रहे होते हैं बजाय कि एक नेटवर्क पे. Key features and advantages of a distributed system. The following are the key features of distributed system. जो नीचे हम फीचर्स बता रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के की फीचर्स होते हैं. पहला
कि वो लूजली कपल्ड होते हैं, दे आर लूजली कपल्ड। रिमोट एक्सेस इज मैनी टाइम्स स्लोअर देन लोकल एक्सेस। जो हमारे रिमोट एक्सेस होता है वो स्लोअर होता है लोकल एक्सेस से। नोड आर ऑटोनोमस, जो हमारे नोड्स होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, मीन्स जो हमारे वर्क स्टेशन रिसोर्सेज होते हैं वो हम लोकली मैनेज करते हैं। नेटवर्क कनेक्शंस यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं हम उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं। डेट इज रिमोट एक्सेस रिक्वायर एक्सप्लिसिट मैसेज पासिंग बिटवीन नोड्स। जो हमारे रिमोट एक्सेस होते हैं वो मैसेज पासिंग यूज करते हैं बिटवीन नोड्स एंड मैसेजेस आर सीपीयू टू सीपीयू। जो हमारे मैसेज जो पास होते हैं वो एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू में ट्रांसफर होते हैं। Protocols for reliability, flow control, failure detection etc. are implemented in software। और जो हमारे सॉफ्टवेयर होता है वो implemented होता है बहुत सारे प्रोटोकॉल से जो हमें reliability, flow control और failure detection etc. प्रोवाइड करता है। The only way two nodes can communicate is by sending and receiving network messages. This differs from a hardware approach in which hardware signaling can used for flow control or failure detection। जो हमारा एक तरीका होता है दो नोड्स के कम्युनिकेट करने का वो होता है कि या तो वो सेंड करे एक नेटवर्क मैसेज या रिसीव करे एक नेटवर्क मैसेज। एडवांटेजेस ओवर सेंट्रलाइज सिस्टम, ये बता रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से कैसे एडवांटेजेस होते हैं। पहला होता है बेटर प्राइस परफॉर्मेंस देन मेन फ्रेम्स। जो हमारे मेन फ्रेम्स होते हैं उनसे चीपर होता है और उनकी परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। मोर कंप्यूटिंग पावर होती है। सम एप्लीकेशंस आर इनहेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं वो इनहेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं। शेयर्ड ओनरशिप फैसिलिटेटेड, जो हमारी ओनरशिप होती है वो भी शेयर्ड होती है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैन बी अचीव्ड, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी कैन बी अचीव्ड। एडवांटेजेस ओवर आइसोलेटेड पीसीज, जो हमारे आइसोलेटेड पीसीज या घर में जो हमारे पीसीज होते हैं उनसे एडवांटेजेस कैसे होते हैं। शेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो शेयरिंग होती है वो अच्छी होती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है। बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी देन आइसोलेटेड पर्सनल कंप्यूटर्स, उनकी परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होती है। सिंपल मेंटेनेंस इफ कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल पीसी, जहाँ उनकी मेंटेनेंस होती है वो भी सिंपल होती है अगर हम इंडिविजुअल पीसी से कंपेयर करें तो। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो होते हैं उनकी नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, उनका लेटेंसी पीरियड, उनका डेटा ट्रांसफर रेट, उनका टोटल नेटवर्क बैंडविड्थ, डिपेंडेंसी ऑन रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। जो डिजाइन गोल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो 6 की गोल्स को मैच करते हैं। पहली होती है कंकरेंसी, दूसरी होती है स्केलेबिलिटी, तीसरी होती है ओपननेस, चौथी होती है फॉल्ट टॉलरेंस, फिफ्थ होती है प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन और सिक्स्थ होती है ट्रांसपेरेंसी। कंकरेंसी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नेचुरल फिनोमिना है जहाँ पे मल्टीपल वर्क स्टेशंस रन करते हैं इंडिपेंडेंटली एक सेम टाइम पे। Scalability, a distributed software system is scalable if it can handle increased demand on any part of system without a change to software। Scalability वो फिनोमिना है जहाँ पे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे प्रोसेसेस रन करवा सकते हैं विदाउट चेंज इन एनी सॉफ्टवेयर। ओपननेस, दो तरह की ओपननेस पॉलिसी होती है जो कि होती है नॉन प्रोप्राइटरी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। Fault tolerance, critically important that a distributed system be able to tolerate partial failures। दो reasons होते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। पहला होता है failures are more harmful और दूसरा होता है failures are more likely। मीन्स जो हमारे failures हैं वो बहुत ही harmful हो सकते हैं और can lead to system crash और वो system crash को भी lead कर सकते हैं। दूसरा होता है कि failure कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए। अगर एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉल्टी हो जाता है तो वो बहुत सारे यूजर्स को हार्म कर सकता है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फेलियर टॉलरेंस, 2 एस्पेक्ट होते हैं फेलियर टॉलरेंस के। पहला होता है रिकवरी और दूसरा होता है अवेलेबिलिटी। रिकवरी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना जो हमारे
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बहुत सारी लोकेशंस पे एलोकेटेड होते हैं, तो शायद कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है एट अ टाइम। अगर फेलियर हुआ भी है तो अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी जगह पे या बहुत सारी लोकेशंस पे एक हमारे सिस्टम रन कर रहा होता है। प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन, जो हमारी प्राइवेसी है वो अचीव कर सकते हैं व्हेन सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन कंट्रोल व्हाट प्रोग्राम्स कैन रीड द मैसेज। हम प्राइवेसी अचीव कर सकते हैं जब सेंडर हमारे मैसेज को कंट्रोल कर सके कि कौन से प्रोग्राम उस मैसेज को पढ़ेंगे। फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन इट इज नीडेड टू अनेबल अ कंसेप्ट कॉल्ड ट्रस्ट। क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए जो हमारा कंसेप्ट है वो होता है ट्रस्ट, जहाँ पे जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लाइक यू डू ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर उस मर्चेंट को देना पड़ता है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और ये ट्रस्ट करना होता है कि वो आपका डेबिट कार्ड नंबर और किसी को ना दे। For server authentication is needed to enforce access control. सर्वर ऑथेंटिकेशन में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस एक्सेस कंट्रोल को यूज करेगा। ट्रांसपेरेंसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जहाँ पे सिंगल सिस्टम इमेज टू रेफर टू दिस गोल ऑफ मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लुक टू प्रोग्राम लाइक इट इज टाइटली कपल्ड सिस्टम। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लूजली कपल्ड होता है, पर जो हमारा ट्रांसपेरेंसी का फिनोमिना है वो ये होता है कि यूजर को लगे कि हमारा जो सिस्टम है वो टाइटली कपल्ड है, मीन्स वो किसी और से कोई सिस्टम शेयर नहीं कर रहा है। अचीविंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इज डिफिकल्ट। यहाँ पे 8 तरह की ट्रांसपेरेंसीज होती हैं। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी कि एक सिंगल यूजर को ये लगे कि सिर्फ वही एक सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, यूजर को ये ना लगे कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, उसे यही लगना चाहिए कि जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वही उस सिस्टम की लोकेशन है। कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी मीन्स हमारे यूजर को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके प्रोसेस के साथ और कोई प्रोसेस भी रन कर रहा है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी मीन्स अगर एक प्रोसेस या एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तो उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास में। फेलियर ट्रांसपेरेंसी, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हुआ भी है तो जो दूसरी नोड पे यूजर बैठा है उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि किसी और लोकेशन पे फेलियर हुआ है या नहीं। मोबिलिटी ट्रांसपेरेंसी मीन्स अगर कोई यूजर मोबाइल है या फिर वो कहीं पे रोम कर रहा है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि जो सिस्टम है वो हमारा पर्टिकुलरली डिस्टर्ब है अभी फॉर द करंट लोकेशन। परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी, ये नहीं है कि अगर एक सिस्टम हमारा एक लोकेशन पे अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे सिस्टम पे उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाए। स्केलिंग ट्रांसपेरेंसी वही कि अगर एक यूजर हमारे सिस्टम को एक लोकेशन पे बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहा है और दूसरे लोकेशन पे सिर्फ एक प्रोसेस रन कर रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसे हम स्केलिंग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। Design issues involved in distributed system. There are certain design issues to be considered for distributed operating systems. They are naming. जो पहला डिजाइन इशू है वो होता है नेमिंग। हम एक जो हमारा नाम होता है वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो आइडेंटिफाई और लोकेट करता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स को। एक आइडेंटिफायर एक स्पेशल काइंड ऑफ नेम होता है जो डायरेक्टली यूज किया जाता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। जो रिजोल्यूशन होता है वो प्रोसेस होता है एक नाम को एक आइडेंटिफायर बनाने में और ये परफॉर्म किया जाता है नेम सर्वर से। कम्युनिकेशन, गेटिंग डिफरेंट प्रोसेसेस टू टॉक टू ईच अदर। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एक मेथड होता है ताकि हमारे बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से आपस में बात कर सके, और ये जो बात करने का या कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो थ्रू मैसेज होता है। और ये जो मैसेज होते हैं वो एक प्रोसेस से हम ट्रांसफर करते हैं जिसे हम रिमोट इन्वोकेशन मेथड भी कहते हैं या फिर RMI कहते हैं। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, choosing a software structure that supports our goal, particularly the goal of openness। जो हमारा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है उसका पर्पस ये होता है कि जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सके, पर्टिकुलरली जो गोल होता है ओपननेस का वो हम अचीव कर सकें। We does want structures that promote extensibility। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटेंसिबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, मीन्स कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है अगर हम उनमें और सिस्टम्स एडअप करना चाहें तो वो हम कर पाएँ।
वर्कलोड एलोकेशन, जो हमारा वर्कलोड एलोकेशन होता है वो की इशू होता है और उसका जो की इशू का नाम है वो होता है लोड बैलेंसिंग। द एलोकेशन ऑफ नेटवर्क वर्कलोड सच दैट नेटवर्क रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, जो हमारा नेटवर्क का वर्कलोड होता है लाइक एग्जांपल सीपीयू, मेमोरी और डिस्क का यूटिलाइजेशन वो एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। इसके लिए दो की अप्रोचेज होती हैं। पहला होता है प्रोसेसर पूल, जहाँ पे यूजर प्रोसेसेस आर एलोकेटेड टू द वर्क स्टेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम that controls all the workstations। जो हमारे यूजर प्रोसेसेस होते हैं उनको वर्क स्टेशन इस तरह के से एलोकेट किया जाता है ताकि वो बहुत सारे वर्क स्टेशंस को कंट्रोल कर सके एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं और जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है वो भी एफिशिएंट होती है, क्योंकि वर्क स्टेशंस आरंट ओन्ड बाय एनीवन, क्योंकि जो हमारे वर्क स्टेशन होते हैं वो कोई भी ऑन नहीं करता है। आइडियल वर्क स्टेशन जो हमारी दूसरे की फीचर है वो है आइडियल वर्क स्टेशन। ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आइडियल बैठा रहता है, जैसे कि जो कोई यूजर लंच कर रहा है या फिर रीडिंग कर रहा है या मीटिंग्स में गया हुआ है, इस टाइम पे जो हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं वो आइडियल होते हैं। तो जो आइडियल वर्क स्टेशंस होते हैं उनके सीपीयू की यूटिलाइजेशन हम कैसे करें उसे हम यहाँ पे बताते हैं। द एबिलिटी टू मूव एन एक्टिव प्रोसेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस माइग्रेशन। और जो प्रोसेस होता है प्रोसेस माइग्रेशन का वो एबिलिटी होती है कि जो हमारे एक्टिव प्रोसेस हैं हम उनको जो मशीन करंटली रन कर रही है उससे ट्रांसफर करके जो मशीन आइडल है उन पे भेजना। प्रोसेस माइग्रेशन इज नेसेसरी टू डील विद द यूजर रिटर्निंग from lunch issue and is useful for rebalancing network load as the load characterize a network change over time। ये जो प्रोसेस माइग्रेशन होता है वो इसीलिए नेसेसरी होता है ताकि जो हमारा लोड बैलेंस है वो हो सके। कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस, जो हमारे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं कंसिस्टेंसी के, वो एटॉमिसिटी होता है। मींस अगर कोई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कंप्लीट हो, आधा ना हो, अगर आधा नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट ना हो। कोहेरेंस, हमारे जो प्रोसेसेस के बीच में कोहेरेंसी होनी चाहिए। फेलियर कंसिस्टेंसी, अगर हमारा प्रोसेस फेल हो रहा है तो उनके बीच में फेलियर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मींस वो फेलियर से रिकवर हो जाए और एटॉमिसिटी को फुलफिल करें। क्लॉक कंसिस्टेंसी, ये ना हो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एक लोकेशन पे वो टाइम शो कर रहा है 6 PM और दूसरे लोकेशन पे वो टाइम शो कर रहा है 7 PM, तो हमारी क्लॉक में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लैम्पोर्ट स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग इवेंट्स, जो हमारे लैम्पोर्ट है उसने एक स्कीम प्रपोज करी थी टू प्रोवाइड ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट यूजिंग लॉजिकल क्लॉक्स। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, कुछ टर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं। इसमें जो पहला है हैपन बिफोर रिलेशन, ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस से पहले हैपन हुआ है और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ A tends to B, तो if A and B are in same process and A occurs before B, अगर A और B सेम प्रोसेस में है तो A ने पहले अक्रेंस ली है B से। अगर A और B, A tends to B if A is an event of sending message and B is the recipient of message by another process। अगर A और B हमारे इवेंट हैं किसी मैसेज सेंडिंग के तो A मैसेज भेजेगा B को। अगर A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C है तो A टेंड्स टू C होगा और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। कैजुअल रेलेवेंट इवेंट्स, जो हमारे कैजुअल रिलेटेड इवेंट्स हैं वो होते हैं इफ A टेंड्स टू B देन A कैजुअली इफेक्ट्स B। अगर इवेंट A टेंड कर रहा है इवेंट B को तो A कैजुअली इफेक्ट करेगा B को, मतलब कि A इफेक्ट डाल रहा है B पे। कंकरेंट इवेंट्स, ये बता रहा है कंकरेंट इवेंट्स के लिए टू डिस्टिंक्ट इवेंट्स A एंड B आर कंकरेंट इफ नॉट ऑफ A टेंड्स टू B एंड नॉट ऑफ B टेंड्स टू A। ये बता रहा है कि जो हमारा A का नॉट है वो टेंड करे B को और B का नॉट वो टेंड करे A को, तो हमारे जो प्रोसेसेस हैं या इवेंट्स हैं वो कंकरेंट हैं। For any two events A and B in a system, only one of the following is true। अगर हमारे दो प्रोसेस जो है A और B एक इवेंट में है तो वो इस तरह से कंकरेंट होंगे। पहला,
A tends to B, दूसरा B tends to A और A is concurrent to B। कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है लॉजिकल क्लॉक सिस्टम को वो है फॉर एनी इवेंट A एंड B इफ A टेंड्स टू B देन C of A is less than C of B, मीन्स क्लॉक ऑफ A छोटा होगा क्लॉक ऑफ B से। दिस इज ट्रू इफ टू कंडीशंस आर मेट, और ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब दो कंडीशन मीट कर रही होगी। पहली होती है इफ A occurs before B, अगर A पहले अकर हो रहा है B से, मीन्स जो क्लॉक टाइम है A का वो छोटा है क्लॉक टाइम ऑफ B से। और दूसरी कंडीशन है वो है इफ A is a message sent from PI and B is the recipient of that same message in PJ, तो जो उनका क्लॉक टाइमिंग होगा वो होगा क्लॉक ऑफ A is less than क्लॉक ऑफ B। ये कह रहा है कि अगर A मैसेज भेज रहा है PI को और B उस मैसेज का रिसिपिएंट है PJ में, तो जो उनकी क्लॉक टाइमिंग होगी वो होगी कि जो क्लॉक ऑफ A है वो छोटी होगी क्लॉक ऑफ B से। जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है क्लाइंट सर्वर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, और जो तीसरा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। पहला जो एप्लीकेशन मॉडल होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर। A designated node exports a service. This node is called server. जो एक designated नोड होता है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है और उस सर्विस को हम सर्वर्स कहते हैं, उस नोड को हम सर्वर कहते हैं। जो नोड इंपोर्ट करते हैं उससे सर्विस, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट कम्युनिकेट करता है सर्वर से यूजिंग अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल से। मींस क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके जो उसका रिस्पॉन्स आता है वो क्लाइंट के पास में भेजेगा। जो डायग्राम शो कर रहा है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे एक क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट मैसेज करा सर्वर को और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डिफर्स फ्रॉम अदर प्रोटोकॉल्स। पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स डोंट हैव अ डेजिग्नेटेड सर्वर। जो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स होता है उनके पास में एक डेजिग्नेटेड सर्वर नहीं होता। स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल सच एज TCP IP वर्क डिफरेंटली एज वी विल सी अ कपल ऑफ क्लासेस फ्रॉम नाउ। एप्लीकेशन इंटरफेस कैन बी ईदर सेंड, रिसीव और RPC। जो हमारे एप्लीकेशन के इंटरफेसेस होते हैं वो सेंड रिसीव हो सकता है या RPC हो सकती है। RPC मीन्स रिमोट प्रोसीजर कॉल। Send and receive, the unique socket interface is an example. Client communicate with server by building a message that is then explicitly sent to the server. Send और receive में क्या होता है, एक जो हमारा क्लाइंट है वो एक मैसेज भेजेगा सर्वर को और सर्वर इन रिस्पॉन्स एक मैसेज भेजेगा क्लाइंट को, और जब सर्वर रिसीव करता है क्लाइंट से एक मैसेज वो उसका एग्जीक्यूट करता है और उसको सेंड करता है क्लाइंट को, और जब क्लाइंट रिसीव करता है सर्वर के मैसेज को वो फाइनली एग्जीक्यूटेड वैल्यू होती है। रिमोट प्रोसीजर कॉल ये एक इंटरफेस होता है जो अलाउ करता है क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजने में एक सर्वर के लिए बाय अ प्रोसीजर कॉल। एप्लीकेशन मॉडल नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू RPC बेस्ड क्लाइंट सर्वर। ये सिमिलर होता है RPC के और बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर पे। ऑब्जेक्ट्स कैन रिसाइड इन ईदर द मेमोरी ऑफ अ क्लाइंट और अ सर्वर। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो क्लाइंट की मेमोरी में या फिर सर्वर की मेमोरी में रिसाइड कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स लाइक C++, Java आर यूज टू एनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज होती है वो एनकैप्सुलेट करती है डेटा को और फंक्शंस को एक हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि C++ या Java। जो दो मेन एडवांटेज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स ओवर RPCs वो होती हैं ऑब्जेक्ट्स हाइड इवन मोर ऑफ द डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन RPC। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स होती है वो ऑब्जेक्ट्स हाइड कर लेते हैं। दूसरी होती है ऑब्जेक्ट अलाउ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग टू डिफरेंट वेज। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लाइंट को अलाउ करते हैं दो तरीके में। पहला होता है फंक्शन शिपिंग और दूसरा होता है डेटा शिपिंग। जो हमारी फंक्शन शिपिंग होती है वो होती है कि हम एक फंक्शन को सेंड कर रहे हैं सर्वर को, और जो डेटा शिपिंग होती है वो होती है कि क्लाइंट
क्लाइंट शेयर कर रहा है अपना डेटा सर्वर से और सर्वर अपना डेटा शेयर कर रहा है क्लाइंट से। ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है हमारा मॉडल नंबर 2 को। यहाँ पे एक क्लाइंट नोड है और एक सर्वर नोड है। सर्वर नोड क्लाइंट नोड एक रिमोट ऑब्जेक्ट कॉल भेजता है सर्वर को, सर्वर उससे एग्जीक्यूट करता है और उसे वापस भेजता है एक रिमोट ऑब्जेक्ट लोकल कॉल से। यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट नोड पे है वो क्लाइंट प्रोग्राम रन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और जो मैसेज होता है वो ऑब्जेक्ट बी के पास में जो हमारी लोकल मेमोरी है उसमें पहुंचा देता है। Application model number 3, distributed shared memory, usually used for peer-to-peer communication instead of client server। जो हमारा distributed shared memory है वो peer-to-peer communication यूज करता है rather than client server। client communicate करता है with each other through shared variables। यहाँ पे shared variables यूज होते हैं ना कि messages। जो एडवांटेज होता है इसका वो होता है कि इनका प्रोग्राम बहुत इजी होता है और हाइड कर देता है सारी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स को। और जो इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये कभी कभार बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। एज फार एज अ प्रोग्राम नोज एवरीथिंग इन इट्स मेमोरी इज लोकल। और जो प्रोग्राम को लगता है कि सारी चीज़ें मेमोरी की लोकल में है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि it is very complicated to implement a distributed shared memory system that works correctly and performs well। और ये इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक प्रोग्राम बनाना जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को एकोमोडेट करे वो बहुत डिफिकल्ट होता है और ये हो भी सकता है कि वो करेक्टली वर्क करे या ना करे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में किस तरह से होता है? व्हेन ऑल प्रोसेसेस शेयरिंग अ रिसोर्स आर ऑन द सेम मशीन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज इजीली एश्योर्ड बाय यूज ऑफ सेमाफोर्स, स्पिन लॉक और अदर सिमिलर शेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो रिसोर्स को कैसे शेयर करते हैं सेम मशीन में, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखता है और एश्योर करता है इसको बाय यूज ऑफ सेमाफोर्स या स्पिन लॉक्स को। When the processes involved are on different machines, however, mutual exclusion become more difficult। जो हमारे processes होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारी machines को, पर जो mutual exclusion होता है वो भी difficult हो जाता है। Example है a number of machines in a network are competing for access to printer। बहुत सारी मशीन्स हमारी प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए compete कर रही हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है एक प्रोसेसेस के लिए। तो जो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो होता है कि एक इंस्टॉल करना है प्रिंट स्पूलर को प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे नेट हैं। Mutual exclusion servers, the problem of storage space in spoolers typically become acute with graphic printers। और ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्पूलर्स की वो एक्यूट हो जाती है ग्राफिक प्रिंटर्स के साथ में। इट इज़ डिजायरेबल टू ब्लॉक एन एप्लीकेशंस प्रोसेसर्स until the printer is ready to accept data from that application's process and then let the printers deliver the data। For example, an application's process may be coded as, जो हमारा application process है हम उसको इस तरीके से कोड कर सकते हैं for a printer। Send request for permission to the spooler, हम एक परमिशन भेजेंगे स्पूलर के पास में, अवेट करेंगे या वेट करेंगे रिप्लाई के लिए ताकि परमिशन हमें मिल जाए प्रिंट करने के लिए। लूप लगाएंगे। सेंड डेटा डायरेक्टली टू प्रिंटर, हम अपने डेटा को प्रिंटर पे भेज देंगे और जब तक हमारा प्रिंटर सारी कमांड्स प्रिंट नहीं कर देता तब तक लूप चलेगा। सेंड नोटिस टू स्पूलर दैट प्रिंटिंग इज डन, और हम स्पूलर को मैसेज भेजेंगे कि हमारी जो प्रिंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। The process implementing a semaphore using message passing might have the following structure। अगर हम semaphore यूज कर रहे हैं तो उसका ये स्ट्रक्चर होगा। एक लूप लगेगा जब await message from the client से मैसेज आएगा। केस मैसेज टाइप ऑफ P, जो हमारा मैसेज है उसका केस रहेगा। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 सेंड इमीडिएटली रिप्लाई काउंट इक्वल्स टू काउंट -1। अगर हमारा काउंट 0 से बड़ा है तो हम इमीडिएट रिप्लाई भेजेंगे और काउंट को कम कर देंगे, वरना हम एनक्यू कर देंगे आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट को। V
इफ q इज एम्प्टी काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और अगर हमारा काउंट q एम्प्टी है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, वरना हम डीक्यू करेंगे वन ऑफ द ब्लॉक क्लाइंट को, सेंड अ डिले रिप्लाई, हम डिले रिप्लाई भेजेंगे और इस तरह से हमारा लूप चलता रहेगा। जो डिसएडवांटेज है इम्प्लीमेंटिंग सेमाफोर्स की वो होती है यूजिंग सर्वर प्रोसेसेस को, इज दैट सर्वर बिकम अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स, और जो हमारी प्रॉब्लम आती है सेमाफोर्स में वो होती है रिलायबिलिटी की। टोकन बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो टोकन बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन होते हैं वो प्रोसेस रिसीव करते हैं द टोकन एंड डज नॉट नीड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द रिसोर्स, इट मस्ट पास द टोकन ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रिंग। जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो रिसीव करते हैं टोकन्स को और एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूट नहीं करते हमारे रिसोर्सेज को। इट मस्ट पास द टोकन ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रिंग, जो टोकन्स होते हैं वो पास कर देने चाहिए नेक्स्ट प्रोसेस को किसी रिंग में। An important detail in token-based mutual exclusion algorithm is that on receiving a token, a process must immediately forward the token if it is not waiting for entry into the critical section. जो important detail होती है token-based mutual exclusion algorithm में वो ये होती है कि जब एक token receive करता है प्रोसेस को immediately उसे आगे forward कर देना चाहिए अगर कोई वेटिंग एंट्री नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में। तो इसे करने के बहुत सारे वेज होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ईच प्रोसेस को पीरियडिकली चेक टू सी इफ द टोकन हैज अराइव्ड, हर प्रोसेस चेक करे कि टोकन अराइव हुआ है या नहीं हुआ है। द रिसीप्ट ऑफ इनकमिंग टोकन कुड कॉज एन इंटरप्ट, जो इनकमिंग होती है टोकन की एक को उसकी रिसीप्ट इंटरप्ट कॉज करे। और तीसरी होती है अ थ्रेड और प्रोसेस कुड बी डेडिकेटेड टू द जॉब ऑफ टोकन मैनेजमेंट, या फिर हम एक थ्रेड या प्रोसेस को डेडिकेट करें ताकि वो टोकन मैनेजमेंट की जॉब को परफॉर्म करे। रिमोट प्रोसीजर कॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम रिमोट प्रोसीजर कॉल इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस। ये एक पावरफुल टेक्निक है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। It is based on extending the notation of conventional और local procedure calling। ये बना होता है एक्सटेंड करे कि कन्वेंशनल और लोकल प्रोसीजर कॉल्स हैं उनको एक्सटेंड करे ताकि जो हमारे प्रोसीजर हैं वो नीड नॉट एग्जिस्ट इन द सेम एड्रेस स्पेस एज कॉलिंग प्रोसीजर्स। हाउ आरपीसी वर्क्स, एन आरपीसी इज एनालोगस टू अ फंक्शन कॉल। ये एक फंक्शन कॉल की तरह होता है। जो डायग्राम है हमारा आरपीसी का वो ये होता है कि जो हमारी क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन है वो अलग अलग रहती हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट के पास में प्रोग्राम है और एक फंक्शन आया जहाँ पे वो रिमोट प्रोसीजर कॉल को कॉल कर रहा है। वो कॉल हमारी एग्जीक्यूट होगी मशीन बी पे, जो कि हमारा सर्वर होता है। एक रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है उसके लिए उसने उस सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करा, उस सर्विस को कॉल किया जहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए जो सर्विस है उसे उस सर्विस को एग्जीक्यूट करा। जब हमारी सर्विस एग्जीक्यूट हो गई और हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई तो इन टर्न उसे रिप्लाई किया गया मशीन को और प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू हुआ। जो हमारा रिमोट प्रोसीजर कॉलिंग मैकेनिज्म है वो ये होता है अ रिमोट प्रोसीजर इज यूनिकली आइडेंटिफाइड एट द ट्रिपलेट। जो हमारी रिमोट प्रोसीजर की जो कॉल होती है वो तीन चीज़ों से बनी होती है। वो होता है प्रोग्राम का नंबर, उस प्रोग्राम का वर्जन नंबर और प्रोसीजर का नंबर। The program number identifies a group of related remote procedures, each of which has a unique procedure number। हर प्रोग्राम के पास में उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, जैसे कि उसका रिमोट प्रोसीजर क्या है और उसका यूनिक प्रोसीजर नंबर क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपीसी, जो हमारी आरपीसी की इम्प्लीमेंटेशन है वो टिपिकली दो तरीके से करी जाती है। वो होता है अ ब्रॉडर एंड मोर एनकम्पासिंग प्रायोरिटी प्रोडक्ट, और दूसरा होता है बाय अ प्रोग्रामर यूजिंग अ प्रोप्राइटरी टूल टू क्रिएट क्लाइंट सर्वर आरपीसी स्टब्स। जो लिमिटेशन होती है वो उसका फीचर होता है डेट में इफेक्ट द डिजाइन एंड कॉस्ट ऑफ अ आरपीसी बेस्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग। पहला होता है सपोर्ट ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। जो लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाता सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग को। दूसरा होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाता डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को।
तीसरा होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाता डिफरेंट फाइल सिस्टम्स को। चौथा होता है whether the RPC mechanism can be obtained individually or only bundled with the server operating system. Do it yourself. What is a remote procedure call and mention its use. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रिमोट प्रोसीजर कॉल को एक्सप्लेन करना और उसको डिटेल में मेंशन करना। और दूसरा होता है हमारा एक्सप्लेन लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम इन डिटेल। थैंक यू।